Good morning and very warm welcome to everyone joining us for World Music Day 2026 Symphony of the Soul. Today, we celebrate the universal language of music that transcends boundary, connects heart, and enriches our lives. It's my privilege to introduce our distinguished guest and rejoice with them the power of music, culture, and creativity. We'll start with Anita Chand. Anita Chand is our first distinguished guest. She's a respectable cultural personality known for her contributions to music, literature, and community engagement. Through her artistic endeavors, she has inspired audience with her dedication to preserve and promote the richness of Indian cultural traditions. We have Dr. Lakshmi Sankar Bajpayee sir. It is an honor to welcome you. You are an eminent Hindi poet, acclaimed broadcaster, and former senior officer of Akashvani. A celebrated literary voice, you have represented India on international platforms and have made significant contributions for poetry, broadcasting, and culture discourse. So welcome, sir. Now we have Mamta Kiranji. We are delighted to have with us Mamta Kiranji, a distinguished poet, writer, and literary personality. Her creative works reflect deep human emotions and cultural values. She has enriched the literary landscape through her poetry and active engagement with readers and writers alike. Welcome, Mamta Kiranji. जी, And we have बहुत last धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Thank you. And we have last but not least, Indrani Chatterjee. She's a very noted musician, cultural ambassador whose artistic genre reflects the beauty and diversity of Indian music through her performances and dedication to art. She continues to inspire music lovers across generations. Today, on this World Music Day, we are going to dedicate today's session to Asa Bhosle ji. And without any further delay, I request Anita Chandji to please come and share her thoughts on the day and to talk about Asa Bhosle ji. So, Anita ji, आपके लिए थैंक यू मनोज। और ये एक आज ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। और हमारे साथ आज ममता जी हैं, बाजपेयी सर हैं, तो ये तो बहुत अच्छा एक साथ बनने वाला है। इंद्राणी जी हैं जो कि रेगुलर प्रैक्टिस में हैं सिंगिंग की, और बाजपेयी सर और ममता जी के भी गाने हम सुनते रहते हैं। तो वर्ल्ड म्यूज़िक डे पर आज बहुत ही अच्छा साथ मिल रहा है, उसके साथ मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि संगीत जो है वो आत्मा की एक मधुर आवाज़ है। और संगीत की कोई बिना शब्दों के हम सुर के माध्यम से दिल तक पहुँचते हैं। जैसा कि आज मनोज ने कहा कि हम आशा भोसले जी को आज का ट्रिब्यूट कर रहे हैं। आज का दिन, आज की जो सिंगिंग है, जो इवेंट है, उनके लिए ही हमने स्पेशली रखा है। तो उनके बारे में ही बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी हाल ही में वो हमें छोड़ कर के इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में आज भी और हमेशा रहेंगी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्वर भले ही मौन हो जाए, पर सच्चे कलाकार अपनी कला के माध्यम से सदैव दिलों में जीवित रहते हैं। तो आशा भोसले जी का भी ऐसे ही एक इतिहास है, हमारे साथ जुड़ा है, मधुर इतिहास है। आशा भोसले जी का मैंने जैसे पढ़ा, और मुझे मतलब हम बचपन से ही उनको सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब कोई इस दुनिया से जुदा होता है या हमसे कहीं दूर जाता है, तो हम उसके लिए और ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम उसको और जानें। तो ऐसे ही मैंने जब उनको पढ़ा तो मुझे लगा कि वो सोसाइटी के लिए क्या क्या दे के गई हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। जैसे एक हम आजकल देखते हैं कि कोई भी सिंगर बहुत दिन तक नहीं टिकता, लेकिन उन्होंने जब वो 10 साल की थी, जैसे मैंने उनको पढ़ा कि 10 साल में एक छोटा बच्चा ही होता है, तब से वो संगीत के लिए डिवोटी थी। और उनका पूरा का पूरा जो परिवार है, जो उनके फादर हैं, जो उनकी सिस्टर हैं, सारा का सारा परिवार जो है वो संगीत के लिए ही समर्पित था। तो आशा जी ने जब अपना पहला गीत 10 साल की उम्र में गाया, तो उनको खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन उस समय वो वो 10 साल की तो थी, लेकिन उनके पास भाषा भी एक मदर टंग थी, जिसके माध्यम से वो अपनी कला का प्रदर्शन करती रही। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सारी विभिन्न भाषाओं में गीत गाए, जैसे हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, और ये बंगाली तो उनका था है ही बेस, तो वो तो है। बाकी उन्होंने जो नौजवानों के लिए जो एक
संगीत का एक जो माध्यम छोड़ा, वो एक बहुत ही रिमार्केबल है, क्योंकि वो पॉप सिंगर भी थी साथ साथ, क्लासिकल के साथ साथ। जैसे कि वो उनका मैंने इंटरव्यू भी पढ़ा, और उनके लिए बहुत उनकी उनकी बात सुन करके मुझे लगा कि वो अपने ही घर में, जैसे उनकी एक जो लता मंगेशकर, उनकी जो बहन, बड़ी बहन है, वो बहुत ही गंभीर स्वभाव की, और ये अपने आप में बहुत एक जॉली नेचर की। तो उन्होंने वही चीज़ आगे तक अपनी रखी कि मुझे इस तरह से ही आगे चलना है, अदरवाइज़ दोनों बहनों में कैसे टकराव भी हो सकता है। तो उन्होंने अपनी एक लाइन बनाई, और उस लाइन को लेकर के वो आज तक, अभी तक 92 ईयर्स तक की एज में उन्होंने अब परफॉर्मेंस दी हैं। उनके बहुत सारे जो गीत हैं वो फेमस हैं और रहेंगे। जहाँ तक ये आप सवाल है, जो भी महफ़िलें आज भी सजती हैं तो उनके वही गाने दोहराए जाते हैं। आई ये मेहरबां, ये गाना अगर आप हम देखेंगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि एक ऐसी पर्सनालिटी गा रही है जो इतनी सोबर है, लेकिन उन्होंने उस तरह के गाने भी गाए। या दम मारो दम, जो कि ये सारे, ये चुरा लिया है दिल तुमने, और पिया तू अब तो आजा, कोई भी सारे ही संगीत को उन्होंने इस तरह लिया है कि आपको जो क्लासिकल के साथ साथ उन्होंने पॉप को डाला है। और जैसे झुमका गिरा रहे, अभी भी कहीं पर कुछ महफ़िलें जमती हैं तो यही गानों से शुरुआत होती है। तो मैं उनको दिल से बहुत ये नमन करती हूँ कि वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उनको हमेशा सुनेंगे और सुनना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ दिया है, और वो जहाँ भी हैं वो अपनी आगे की जर्नी में, तो उसके लिए बहुत सारी नमन करते हैं कि वो अपना, और उन्होंने एक ही नहीं, इतने जो भी उस शतक के 70, 80, 90 या अभी तक के जितने भी लेखक रहे हों और संगीतकार रहे हों, सबके साथ काम किया, और सबके साथ इतना फ्रेंडली काम किया है कि उनको वो बड़ी हंसी मजाक में ही अपना काम भी कर लेती थी। उन्होंने कुछ वाक़या आपने सुना है कि वो इतनी जॉली नेचर की थी कि उनको अगर उनको अपने मतलब गाने के साथ साथ वो परिवार, अपनी फैमिली को भी देखती थी, अपने बच्चों को भी देखती थी, तो उनके लिए तो हमेशा नमन है। और मैं अभी मनोज, आप मुझे बताते रहिएगा कि मेरा जो है कितना टाइम जरूर। मुझे लेना है, क्योंकि हाँ, अगर मैंने ज़्यादा उनके बारे में ही पढ़ा तो हम तो सारे आप जो सामने जो लाइव सिंगर बैठे हैं उनको भी तो हमें देखना है। म्यूजिक डे है, तो आप अपना एक इससे पहले अपने अगले अतिथियों के पास पहुंचे, आप एक गाना क्यों ना हमारे सामने गुनगुना दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर अपना गाना आप तक पहुँचाऊँगी। और जो है मेरे थोड़ा स्टार्ट होने में 2 मिनट लगते हैं, और मैं इस पर सेट करके मेरा एक आशा जी का गाया हुआ मेरा जो गाना है, और कव्वाली कहना चाहिए इसको, कव्वाली है, बहुत ही फेमस है, सभी लोगों के दिल के बहुत करीब है, मैंने उसे ही चुना। और मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी उनका गाना, लेकिन हम गुनगुनाते हैं तो ज़रूर अपनी आवाज़ में आप तक पहुँचाएंगे। और ये मेरा राग यमन से है, ये इनका जो नगमा है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, और इसका ये समय मेरा बहुत वैसे शाम पसंदीदा का सॉन्ग है। है। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। और ये बहुत लोगों से मैंने पूछा तो कहते यही बहुत बढ़िया है, बाकी तो सब हैं तो बढ़िया, पर मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने ये सब, इसका बस समय है कि शाम को गाया जाता है, लेकिन मैंने इसको दिन में ही गा दिया, और दिन में ही गाने की कोशिश की है। मुझे कोई भी मेरे से त्रुटि हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी कलाकार के गाने को मैंने छूने की हिम्मत की है, तो मुझे थोड़ा डर भी है कि सब आप डरिए मत, आप सीधे गाना गा दीजिए। राज की बात है
बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सुंदर गाना गाया अनीता जी आपने, बहुत अच्छा लगा। आपने हमारा पसंदीदा गाना गाया, बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे पहले हम ममता जी और वाजपेयी सर के पास आए, मुझे उम्मीद है कि ड्यूएट भी सुनने को मिलेगा आज। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंद्राणी चटर्जी का, बता दूँ कि पिछले 20 साल से संगीत की साधना कर रही हैं और बेहद उम्दा सिंगर हैं ये। तो इंद्राणी जी आप एक सॉन्ग हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद हम ममता जी और वाजपेयी सर के पास जाएँगे और उनके जो खजाने से कुछ अनमोल नगमे हैं वो हम फिर सुनेंगे। तो ओवर ओवर टू इंद्राणी जी। Thank you so much, sir, for this opportunity and inviting me to this platform with so many eminent personalities. Without much sparing words and delaying, I would like to present a song from this Rose Rose Aankhein Tale is a classic वाह! romantic Hindi film from a 1986 movie Jiva, composed by R.D. Burman with deep philosophical lyrics by Gulzar. It was बहुत originally sung by Asha Bhosle and Amit Kumar, and the song features actors Sanjay Dutt and Mondakini. So I'm starting with the song. रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला, रोज रोज आँखों तले, एक सपना जगे, रात भर काजल लगे, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, वो रोज रोज आँखों तले, सपना जगे, रात भर काजल लगे, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, वो रोज रोज आँखों तले। जब से तुम्हारे नाम की निशानी होठ लगाई है, मीठा सा है और मीठी सी तन्हाई है, जब से तुम्हारे नाम की निशानी होठ लगाई है, मीठा सा है और मीठी सी तन्हाई है, रोज रोज आँखों तले, सपना जले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, वो रोज रोज आँखों तले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी ये उलझन है, ये समझा दो तुम, जीना तो
लगा इंद्रानी जी से, जो आपने मंत्रमुग्ध कर दिया, बहुत ही अच्छा लगा सुन बहुत करके सुंदर, आपने ये पहली सॉन्ग। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और बिना किसी विलंब के अब आते हैं ममता जी और वाजपेयी सर के पास, और देखते हैं आज इनके पिटारे में हमारे लिए क्या सॉन्ग्स हैं। हाँ, सो ओवर टू यू ममता जी एंड वाजपेयी सर। जी जी, ये डुएट है काला पानी फिल्म का है, देवानंद मधुबाला का। थोड़ा तो जैसा वो अनिता जी ने बताया कि वो उनको उस तरह के गाने हैं चुहलबाजी वाले, इसमें पूरी चुहलबाजी है पूरा छेड़छाड़ है, तो वो गाना हम लोग डुएट कोशिश कर रहे हैं। ये मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है। जी। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, ये कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल ना तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल ना तोड़ो, अरे छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। अरे समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। बहुत सुंदर। जीवन के रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन के रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, और जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, चार कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, जाओ रह सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे, क्या करना है जी के, हो रहना किसी के, क्या करना है जी के, अरे हो रहना किसी के, न रहे तो याद करोगे समझे। समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा ममता जी और वाजपेयी सर। और क्यों ना एक और आप अपने चॉइस का एक और गाना आप सुना, इसके पहले हम इंद्रानी जी के पास वापस जाएं। चलिए चलाते हैं। गा सकते हो, duet भी गा सकते, जैसे इच्छा हो आप लोग, सिंगल सिंगल भी गा सकते हो अथवा ड्यूएट भी, जैसे भी इन विच यू आर कंफर्टेबल विद।
ये भी छेड़छाड़ वाले गाना है, ये हाँ भी हाँ मधुबाला जरूर। का लिखा हुआ है और ये भी देवानंद आशा, है। अब हम आशा जी को याद कर रहे हैं तो गाने तो ऐसे ही होंगे सारे बोलना। जी 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 बोलिए। चला चला छोड़ दो आंचल जमाना वाह। क्या कहेगा, हो छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। आहा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हो छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। आहा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। हो छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। आहा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ओ हो हो। क्यों न देखो जाग जाए प्यार की अंगड़ाई, ये रास्ता ये तन्हाई तो दिल ने ठोकर खाई। यही दिन है मस्ती के दिन है, यही दिन है मस्ती के दिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। हो छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। आहा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ये बहारे ये फुहारे ये बरसता सावन, हर थर कांपे है तन मन, तेरी पैया घर तो साजन। ये बरसता सावन, हर थर कांपे है तन मन, मेरे पैया घर तो साजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल की जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। आहा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया गाना गाया ममता जी और वाजपेयी सर। बहुत अच्छे कमेंट्स मजा आए आ आपके गया। गाने के लिए। सच में आपने तो बड़ी लाइट हार्टेड सॉन्ग्स लिए आप एंड आप तो एक्चुअली क्वाइट आप कैप्टिवेटिंग। बिल्कुल फिक्र मत करिए, कुछ नहीं, जमाना कुछ नहीं कहेगा आप दोनों को, फिक्र नहीं करिए। और एक बार बिना रिहर्स नहीं किया तो बस अभी नहीं लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया और जो नहीं वो आप इम्प्रॉम्प्टू सिंगिंग की का एक अलग ही मजा होता है।
So thank थोड़ा you so थोड़ा much. देना बहुत चाहिए मज़ा, वाह! मुझे बहुत मज़े आ गए बहुत गाने अच्छा सुन कर गाया के, आपने। बहुत अच्छे। सो अनीता जी के पास हम चलेंगे क्योंकि उनके खजाने में एक गाना जो उन्होंने अभी तक मुझे बताया नहीं कि आज वो कौन सा गाना गाने वाली हैं, लेकिन उसके पहले मैं इंद्रानी जी के पास जाऊंगा और वो शायद एक बांग्ला सॉन्ग सुनाएंगी हमें। तो अच्छा ओवर वेरी टू इंद्रानी जी। इंद्रानी जी, गुड Yeah, thank you, sir. Now I'm going to sing a very popular Bengali film song, Aru Dure Cholo Jai. Was also vocalized by Asha ji, and the lyrics and melody of this song was composed by Shudhin Dashgupta. He was a very veteran music composer of that era, and the song was picturized for the film Chhoddobeshi. The actors were Uttam Kumar and Madhubi Chattopadhyay. And actually, I have chosen this song to show Ashaji's versatility. So we are celebrating her, so we must also showcase this. And she was a very veteran singer वेरी ट्रू। of Bengali songs. She and Hardy Burman together, one as a composer and one as a singer, have created immense mesmerizing songs in Bengali as well. So this is one of that. It's a very popular song, which I'm going to sing now.
आशापाशी भोरे अशी आशापाशी भोरे अशी Awesome, very melodious voice you have in बहुत Rani ji, and really language is बहुत not a बढ़िया। barrier मिला to music. वाह So we बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमने रसगुल्ला essence of खा the लिया song है, इनका। बहुत ही सुंदर इंद्राणी जी की बढ़िया। आवाज़ इतनी और मीठी है, इतनी स्वीट वॉइस है आपकी, बहुत बहुत। सो बिना किसी विलंब के अनीता जी आपके पास उपस्थित होते हैं हम आपके अगले गाने को सुनने के लिए, और समय भी हमारा ऑलमोस्ट एक्सीड कर गया, बट विद योर सॉन्ग विल लाइक टू एंड दिस शो। हाँ, मैं गुनगुनाना चाहूँगी, मैं म्यूज़िक से भी नहीं रेडी हूँ, तो छोटा सा एक गाना गुनगुनाना चाहूँगी। जरूर। और मेरे साथ आप सब भी गुनगुना सकते हैं। दो लफ्ज़ों की वाह 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 दिल वाह। की कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। आप हम लोग हाँ मिलके भी गा सकते हैं अगर आप चाहें तो। जरूर तो बिल्कुल। बताइए आप लोग ममता मिल जी, कर के जरूर हम आप भी गाते गाइए हैं। साथ में, जी और सर हाँ और इंद्राणी जी सब लोग। जी। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ये कश्ती वाला क्या गा रहा है, शायद इसे भी याद आ रहा है। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई इसे भी याद आ रहा था। किससे पुराने ला 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 किससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी। या है मोहब्बत या है जवानी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी बहुत मेलोडियस अनीता जी, बहुत ही अच्छा लगा सुन थैंक करके आप यू। सबको, एंड एज वी कम टू क्लोज ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन। मनोज जी, हाँ जी एक सर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, अभी इंद्राणी जी ने भी गाए और इन्होंने भी गाया, सारे चुहल वाले गाने तो बहुत अच्छे उन्होंने गाए, मस्ती वाले, लेकिन जो सैड सॉन्ग्स गाए हैं, चैन से हमको जी कभी आपने जीने न दिया, जीने ना दिया। जिंदगी थी उसको तो न पाया हमने, या दो लफ्जों की जो, तो वो जो सैड सॉन्ग्स गाए वो बिल्कुल वो भी सारे माइलस्टोन बन गए हैं। बिल्कुल और जी निश्चित। जी दूसरी बात ये थी कि जब वो दिल्ली आई हुई थी तो हमने उनको अप्रोच किया एफएम गोल्ड पे शो के लिए, वो फौरन मान गई बिना किसी ना नुकुर के, और जो भी उनका था दिल में सब छोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं है। अच्छा, फिर वो आई तो अब वो पब्लिक से उनको फोन कर सकती थी, सीधा फोन इन प्रोग्राम था, तो इतने फोन आए हजारों, मतलब फोन आए, उसमें ले तो हम नहीं सकते उस तरह से, वो होता एक फोन जब चल रहा होता रेडियो पे तो उसके मतलब 100 फोन उसमें नहीं आ रहे होते, ये दुर्भाग्य है। क्योंकि
तो उन्होंने जो बात कही थी वो यहाँ कहना बहुत जरूरी था। वो ये था कि उन्होंने कहा, अरे 1 घंटा हो गया, उन्हें इतना मजा आया। उन्होंने कहा क्या ये बढ़ सकता है, तुम बिन मांगे मोती मिले? उन्होंने कहा हाँ कमाल है, 1 घंटा। तो वो 2 घंटे का शो चला, और उसमें जो एक बात कही थी वो जरूर कहना मतलब दोहरा, इसी के लिए मैंने ये शुरू किया। उन्होंने कहा कि कोई मुझे ये जाने कि नहीं जाने कि वो बड़ी गायिका थी, मैं इस नाते जानना चाहूंगी कि मैं बहुत अच्छी इंसान थी। तो ये बहुत बहुत बड़ी अच्छा, बात थी। बहुत अच्छा। बहुत ही और सही उनकी कहा एक सर, और बहुत एक और अच्छा। बात भी थी उनकी कि किसी उनके उनसे पूछा गया कि आपको पता है आप कौन हैं? आप आशा भोसले हैं। बोली नहीं, मैं आशा भोसले नहीं हूँ, मैं आशा हूँ। तो एक आशा थी वो। बहुत बहुत ही सही कहा आपने। और बहुत ही अच्छा आज का एक्चुअली ये प्रोग्राम रहा, मतलब बिल्कुल ही कैप्टिवेटिंग बोलना चाहिए। So now it's time to come to an end. So as we come to close this beautiful celebration, World Music Day 2026 Symphony of the Soul, I would like to express my heartfelt gratitude to everyone who made this event memorable. First and foremost, I would like to extend my sincere gratitude to Anitaji, Lakshmi Vajpayee sir, Mamta Kiranji, and Indrani ji. Your presence has enriched this gathering and reminded us the transformative power of music and culture. So I'd also like to thank all the audience members for their beautiful comments, and I'm glad that you enjoyed today's this program. Your enthusiasm and engagement have truly brought this celebration to a life. And on this World Music Day, let us carry forward the spirit of harmony, creativity, and human connections that music inspires. May music continue to unite hearts, transcend boundary, and bring peace and joy to our life. So good day, stay inspired, and keep the music alive. Thank you so much to थैंक यू, all of you. थैंक यू you, मनोज, Thank thank you. you, thank थैंक you. यू मनोज। Thank you, Close Iris. today's Thank you, event. Thank you so Sublime. much. Bye. Thank you.